Very good morning, students. Welcome to the determinants second class. In the last class, we have started this new chapter, that is determinants. We have understood what is determinant, how to find the determinant of the square matrix of order 3 into 3, order 2 into 2, and uh, some properties of finding the determinant of the matrix, square matrix, and how to find the minors, cofactors, and adjoint of the square matrix that we have understood in the last class. Now today we are discussing the term called inverse of a matrix, inverse of a square matrix. Okay, here inverse of a matrix. Before moving to this inverse of a matrix, uh, let us understood when the inverse is exist. Okay, so here singular matrix, a square matrix A is called a singular matrix if the determinant of A is equal to 0. एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है तो फिर उसे हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे. तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स a square matrix A is called non singular if determinant of A is not equal to 0. एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कब होता है, इफ द स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर. अगर गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो फिर वहां पे इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स पॉसिबल है. अगर वहां इनवर्स एग्जिस्ट है तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलेंगे हम इनवर्टिबल मैट्रिसेस. ओके, ऐसे मैट्रिसेस को इनवर्टिबल मैट्रिसेस बोलेंगे. The singular matrix determinant of A equal to 0. Non-singular matrix is determinant of A not equal to 0. If A and B are non-singular matrices of the same order, then AB and BA are also non-singular matrices of the same order. For example, we have a two square matrix A and B of same order, and both A and B are non-singular matrices. Then A into B. AB means A into B. A into B matrix and B into A matrix both are non-singular matrices of same order. A square matrix A is invertible if and only if A is non-singular. Before this I told you that inverse of the matrix is possible if square matrix A is a non-singular matrix. Here a square matrix is invertible. Invertible means there exists inverse for the given matrix. A square matrix A is invertible if it is non-singular matrix. Non-singular means determinant of A is not equal to 0. And the formula for the A inverse, the formula for A inverse is A inverse equal to 1 by determinant of A into adjoint of A. Because of this formula, that square matrix should be a non-singular matrix. In singular, what happened? Determinant of A equal to 0. If determinant of A equal to 0, 1 by 0 become not defined. That's why that invert does not exist here. So inverse exists if and only if the square matrix A is a non-singular matrix. तो यहाँ क्या होता है, determinant of A is not equal to 0. Then we will get inverse of the square matrix A. Next. Consistent system and inconsistent system. Using the determinant, we can solve the pair of linear equation in two variable as well as three variables. Okay, here the system of linear equations, we say it is consistent if there exists solution. If there exists solution, here
consistent system, a system of equations is said to be consistent if there exists one or more solution to the system of equation. If there exists a solution, one solution or many solution, whatever it may be, if there exists solution, then we say that the system of equations are consistent system of equations. If there is no solution, if there is no solution for the linear equations, then we can say that inconsistent system of equations. So here inconsistent system is if the solution to the system equation does not exist, then the term then it is termed as a inconsistent. इसे हम inconsistent बोलते हैं. If there is no solution, solution है, one solution है या infinite solution है, then we can say consistent equations. और solution नहीं है, solution exist नहीं है, तो फिर हमें इसे क्या बोलेंगे, inconsistent system बोलेंगे इसको. Next, for the square matrix A in the matrix equation AX is equal to B. Suppose we have given a linear equations in 2 variable or 3 variable. By using a matrix method, we can solve the linear equations. That the linear equations will be in the form of AX equal to B. Matrix A is a square matrix which contain the coefficient of the variables, which contains the coefficient of the variable in all the equations. And matrix X is involving the variables which are in the linear equation. And the last one, matrix B containing all the elements, all the constant elements in the given linear equations. Okay. The determinant of A not equal to 0, then there exists a unique solution. The system of equation is consistent. And determinant of A equal to 0, then adjoint of B is not equal to 0, then there exists no solution. Determinant of A is equal to 0, determinant 0 है और adjoint of A into B is not equal to 0 है, तो फिर इसे हम क्या बोलेंगे, there exists no solution, वहां पे solution नहीं है. The system is inconsistent. Determinant of A equal to 0 है और adjoint of A into B equal to 0, then the system may or may not be consistent. Determinant of A equal to 0 है और adjoint of A into B वो भी 0 है, तो वहां पे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. ऐसा हो सकता है कि infinite solution हो, तो फिर वो consistent ही होगा. ठीक है. Next, we'll move to the next thing. Yes, problems, examples. The value of this determinant is, we are finding the value of this 2 into 2 matrix, and we are finding the determinant. There is a determinant symbol to this matrix. Okay, यहाँ देखिए ये जो लाइन्स है, ये जो स्ट्रेट लाइन्स है, that indicate determinant. ओके अगर मैट्रिक्स रहता तो वो क्या रहता बेटा, वो वहां पे ना एक स्क्वेयर ब्रैकेट रहता, वहां पे एक स्क्वायर ब्रैकेट रहता. यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, दोनों लाइन से. इसका मतलब ये हुआ कि हमको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 into 2 मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 into 2 मैट्रिक्स इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है. यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू cos 15 into cos 15, cos square 15 and sin 15 into sin 15, that is sin square 15 degree. When we cross multiply, we will subtract the second multiplication from the first multiplication. First multiplication we have to write as it is, second multiplication we have to change the symbol minus, क्योंकि subtract करना है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, पहला मल्टीप्लिकेशन में दूसरे मल्टीप्लिकेशन को माइनस करना है. तो cos square 15 minus sin square 15, this is in the form of cos square theta minus sin square theta. ये cos 2 theta का फॉर्मूला है. Then we can write this as a cos 2 into
cos 2 into 15 डिग्री, 2 into 15 डिग्री, बिकॉज थीटा 15 है, तो 2 into 15 कितना हो रहा, दैट इज 30 डिग्री, 15 to the 30. Cos 30 degree value is root 3 divided by 2. Then the determinant of this matrix, square matrix of order 2 into 2 is root 3 by 2. The root 3 by 2 is the third option. Understood? Okay. Let us move to the next problem. Here we have given two determinants are equal. इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं दो डिटर्मिनेंट्स इक्वल हैं. अगर ये मैट्रिक्स रहता, इफ इट इज अ केस ऑफ मैट्रिक्स, वी टेक द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, बट दिस इज नॉट अ मैट्रिक्स, दिस इज डिटर्मिनेंट. कैसे पता चलेगा ये मैट्रिक्स है या डिटर्मिनेंट है? तो ये जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स के साथ दो स्ट्रेट लाइंस हैं, इट इंडिकेट दैट डिटर्मिनेंट. ओके, अगर ऐसे स्ट्रेट लाइंस आएंगे तो इसका मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट. ये स्ट्रेट लाइन की जगह अगर स्क्वेयर ब्रैकेट आ रहा है, इसका मतलब क्या रहेगा, वो रहेगा मैट्रिक्स. तो दो मैट्रिक्स इक्वल है. दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल रहेगा, जैसे कि 3x इक्वल टू 8 ऐसा रहेगा. लेकिन यहाँ पे ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है, तो डायरेक्टली वी कांट इक्वेट दी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड देयर डिटर्मिनेंट्स. इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा. ओके, जैसे कि LHS का डिटर्मिनेंट, LHS का डिटर्मिनेंट होगा 3 4 12x माइनस 7 2 माइनस 14, 7 इंटू माइनस 2 माइनस 14. ऑलरेडी डिटर्मिनेंट के लिए माइनस सिंबल आता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 14 हो जाएगा. इट इज इक्वल टू 8 8 4 8 4 32, 8 4 32 एंड 6 7 42. ओके, 8 4 32 and 6 7 42. On solving this equation, we'll get the value of x. So this become 12x plus 14 is equal to 32 minus 42 minus 10. And taking this 14 to RHS, it become 12x equal to minus 10 minus 14. This 12x equal to minus 24x, minus 10 minus 14 minus 24x. तो ये 12 1s are 12, 12 2s are 24. So this is not x, only 24 it is. तो 12 1s are 12, 2s are 24 कट जाएगा. Then we will get x is equal to minus 12. x equal to minus 12, यानी कि sorry minus 2, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. इसमें x का वैल्यू है माइनस 2. तो डिटर्मिनेंट वेरी सिंपल चैप्टर है. इसमें अगर हमको कॉन्सेप्ट समझ में आया, देन इजीली वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट. इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमको फाइंड करना है. ओके, तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए, ये तो बड़े बड़े नंबर्स है, वेरी लार्ज नंबर्स है. ये लार्ज नंबर्स को बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन वी मस्ट रिड्यूस इनटू स्मॉलर नंबर्स. अगर वो स्मॉलर नंबर में हम रिड्यूस करते हैं, देन इजीली वी कैन फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट. ऑलरेडी वी नो दैट that is if we apply elementary operation to this determinant, the determinant value does not change. Property of determinant उसमें पढ़े थे हम लास्ट क्लास में कि अगर गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, द वैल्यू डज नॉट चेंज. ठीक है, तो फिर एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करना क्यों है? देखिए, इस डिटर्मिनेंट में जो नंबर्स है वो सारे बड़े बड़े नंबर्स हैं. वी कांट बट द मल्टीप्लिकेशन इज नॉट इजी. इनको मल्टीप्लाई करना इजी नहीं है, इसलिए हम एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करते हैं. ओके,
तो इनमें देखिए एक 67 है, दूसरा 39 है, तीसरा 81 है। तो फिर इनको एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे अप्लाई करेंगे हम? तो 39 है, 39 जो है हम 81 को या ऐसे कॉलम्स देखेंगे तो फिर 19 19 13 24 और 67 39 81। 19 हम लोग क्या करेंगे, इधर कॉलम कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे इसमें। कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके तो फिर ये जो लार्ज नंबर्स हैं इनको स्मॉलर नंबर्स में चेंज करेंगे। C1 कॉलम वन को हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? C1 माइनस 19 का टेबल हम काउंट करेंगे। 19 वन जा 19, 19 टू जा 38, 19 19 थ्री जा 57, 19 थ्री जा 57 होगा। तो फिर ये 67 तो स्मॉलर नंबर में चले जाएगा। 19 थ्री जा कर लेंगे हम लोग, तो 3 into C2, 3 into C2। ऐसे ही हम लोग ये जो C3 है, C3 में से अगर हम C2 माइनस कर लेंगे तो ये जो लास्ट कॉलम के एलिमेंट्स है वो भी स्मॉलर नंबर्स हो जाएंगे। देन आई एम अप्लाइंग द एलिमेंट्री ऑपरेशन। C2 एज इट इज लिखेंगे, दैट इज 19 13 एंड 24। C1 एंड C3, फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम भी चेंज होते हैं। तो पहले सेकंड कॉलम को हम इंटू 3 करेंगे, इधर इंटू 3 करके C1 में से माइनस करेंगे। 19 3 जा 57, 67 माइनस 57 इज 10, और 13 3 जा 39, 39 माइनस 39 0, और 24 3 जा 72, 72 होगा। 81 में 72 अगर माइनस करेंगे, सॉरी 72 माइनस करेंगे तो फिर हमको 9 मिलेगा, 9। थर्ड कॉलम में सेकंड कॉलम माइनस करेंगे तो 21 माइनस 19, 21 माइनस 19 2 होगा, और 14 माइनस 13 ये होगा 1, और 26 माइनस 24 होगा ये 2। देखिए बड़े बड़े नंबर्स थे, ये स्मॉलर नंबर्स में चेंज हो गए। ठीक है, तो फिर और छोटे नंबर हम कर सकते हैं इनको। हाँ, और छोटे नंबर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें। तो देखिए C1 में के C3 माइनस करेंगे हम, C1 में से C3 को माइनस करेंगे तो 10 माइनस 9 1 होगा, 19 माइनस 24 माइनस 5 होगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। ठीक है ना। R1, तो R1 चेंजेस टू R1 माइनस R3, ऐसे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। सो दिस डिटर्मिनेंट चेंजेस टू 10 माइनस 9 इज 1, 19 माइनस 24 इज माइनस 5, 2 minus 2 is 0, and this is 0 13 1 and 9 9 24 and this is 2। तो इसका डिटर्मिनेंट हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। यस, वी कैन फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट इजीली। ओके, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने से पहले ये जो माइनस वन पावर आई प्लस जे करना होता है ना, माइनस वन पावर आई प्लस जे, तो इसके सिंबल ले लेते हैं हम लोग। we can find its determinant by using any row और any column। कौन सा भी एक रो या कौन सा भी कॉलम यूज करके इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ना फर्स्ट रो यूज कर रहा हूँ। फर्स्ट रो क्या होता है, इनका सिंबल प्लस माइनस प्लस होता है। ठीक है ना। -1 पावर 1 1 + 1, ये A11 है, तो I + j 1 + 1 2 होगा, -1 का स्क्वायर प्लस,
तो ये अल्टरनेटिवली प्लस सिंबल यूज करते हैं व्हेन वी आर एक्सपैंडिंग दिस डिटर्मिनेंट। तो +1 इंटू ये 1 रहे सो रो और ये कॉलम हम डिलीट करेंगे, 1 रहे सो रो और कॉलम डिलीट करेंगे। तो ये बाकी जो 4 एलिमेंट है इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। 13 2 दैट बिकम 26 एंड 1 इंटू 24 इज 24, then we are taking plus -24. 13 2 is 26, 1 into 24 is 24, -24. फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन में सेकेंड मल्टीप्लीकेशन माइनस करना है। द सेकेंड एलिमेंट इज माइनस इंटू माइनस +5, दिस बिकम +5 इंटू ये जो 5 है 5 रहे सो रो और कॉलम छोड़ना है, 5 वाला रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो रिमेनिंग जो 4 एलिमेंट है इनका डिटर्मिनेंट 0 इंटू 2 ये होगा 0 और 1 इंटू 9 होगा 9, दैट इज -9 and the last element is 0 into anything is 0 only, then I am not considering that cross multiplication of 0. The next, I'm simplifying this. 26 minus 24 is 2 and here it is -9. 5 into -9 is -45. तो 2 में से 45 अगर माइनस करेंगे हम, 2 में से 45 को माइनस करेंगे विल गेट -43. You can see that this first option is -43. That is the correct answer. इस तरह से हम कौन सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. ओके, इफ डिटर्मिनेंट डेल्टा सिंबल जो है, वो जो डेल्टा सिंबल है डिटर्मिनेंट के लिए यूज करते हैं. इफ डेल्टा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट दैट इज 538 201 123, देन द माइनर ऑफ द एलिमेंट A23 इज, यहाँ पे एक एलिमेंट है A23, इसका माइनर फाइंड करना है A23, तो वो होगा M23. 23 का मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट. सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या होता है? सेकेंड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट होता है 1. तो 1 रहे सो रो और ये कॉलम को छोड़ना है. रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 2 10, ये 5 इंटू 2 हुआ 10 और ये 3 1 होगा 3. तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते, सेकेंड जो मल्टीप्लीकेशन है उसका सिंबल चेंज करते, तो व्हाट इज 10 - 3, दैट इज इक्वल टू 7. द सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द माइनर ऑफ एनी एलिमेंट इन द गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स का या डिटर्मिनेंट का हम माइनर्स फाइंड कर सकते हैं. ठीक है ना. तो माइनर्स का मतलब क्या होता है? माइनर ऑफ एनी एलिमेंट Aij इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ दैट एलिमेंट विच इज ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स करस्पॉन्डिंग रो एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम. ठीक है ना. वो जो एलिमेंट है वो एलिमेंट रहे सो रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, बाकी एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, दैट बिकम द माइनर. So what is its minor? That is 7. Next, we'll move to the next problem. The value of the determinant that is cos 75 degree into cos 30 degree, cos 75 degree minus sin 75 degree sin 30 degree cos 30 degree. We are finding its value. तो दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. इस 2 इंटू 2 स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. cos 75 इंटू cos 30, cos 75 इंटू इसे हम क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट लिखेंगे डेल्टा इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन cos 75 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस
तो साइन 75 टू साइन 30 दैट इज माइनस साइन 75 साइन 30। ऑलरेडी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में माइनस सिंबल है तो ये होगा प्लस साइन 75 डिग्री इंटू साइन साइन 30 डिग्री. So this is in the form of cos A cos B plus sin A sin B. We know the compound angle formula. We know that cos A cos B plus sin A into sin B is equal to cos A minus B. cos A cos B प्लस sin A sin B का फॉर्मूला होता है cos A minus B. यूजिंग दैट फॉर्मूला दिस बिकम cos 75 minus 30. 75 में 30 अगर माइनस करेंगे देन विल गेट 45 डिग्री एंड वी नो दैट cos 45 डिग्री इज 1 डिवाइडेड बाय रूट 2. Answer is 1 by root 2. Here we are checking this option. Can see that the second option is 1 by root 2. Okay, understood ना? तो इस तरह से हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. Here we have a equation that we have yes, determinant equation it is. Equate to 0 is there, then it is equation, determinant equation. So here this determinant value is equal to 0 0, then what is the value of x that we have to check. इस determinant का value 0 है तो फिर x का वैल्यू क्या होगा, क्या -1 होगा, 1 होगा, 2 होगा या -2. So that we have to check. Let what is given here, we have given that is 1x 2x 1 3x 5x 1 3 4 it is given, and this determinant is equal to how much, it is equal to 0. Let us apply the elementary operation to the square matrix. इसको हम elementary operation apply करेंगे. Already we know the property of this determinant. If we apply the elementary operation, the value of determinant does not change. तो हम apply करेंगे elementary operation. इस determinant का एक खासियत है, याद रखिए, इसमें जो पहला कॉलम के एलिमेंट्स है वो 1 1 1 है. आपको अगर इजीली इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो ये 3 1 में से 2 1 को 0 करने हैं. 3 1 1 1 है तो फिर ये तीनों में से 2 को 0 करेंगे हम लोग 0 0. ठीक है, that is I am changing r1 changes to r1 को चेंज करेंगे हम r1 3 -4 r2 को चेंज कर लेंगे हम. r2 changes to r2 minus r1. r2 changes to r2 minus r1 करेंगे तो फर्स्ट रो एज इट इज रहेगा 1x 2x. ओके, और मैं r3 को क्यों चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि देखिए इसमें x नहीं है. ठीक है ना, तो फिर ओनली r2 को मैंने चेंज किया, r2 माइनस r1. तो ये होगा 1 - 1 0 3x माइनस x. 3x माइनस x होगा 2x और 5x माइनस 2x होगा ये 3x. एंड द लास्ट कॉलम 1 3 4 आई एम राइटिंग एज इट इज. ओके, अगर यहाँ पे मैं सेकेंड कॉलम को इंटू 2 कर लेता तो दिस बिकम 2x. तो 2x माइनस 2x 0 हो जाएगा. Then again I am applying C2 changes to C2, not C2 changes to C3 changes to C3 minus 2 C2.
C2 को 2 से इंटू करके C3 में माइनस करना है, देन दिस बिकम, so this become first column 101 as it is, second column देखिए 2 into x 2x 2, second column as it is रहेगा ना, ये x 2x और ये 3, और थर्ड कॉलम चेंज होगा, 2 इंटू एक्स 2x 2x माइनस 2x ये होगा 0, और 2 2 4x होगा, 3x माइनस 4x होगा माइनस x, और यहाँ पे 2 3 6 होगा, 4 माइनस 6 कितना होता है बेटा, -2, 4 माइनस 6 इज -2. Then we are finding the determinant of this matrix या this square matrix. Okay, इसका determinant अगर हम find करेंगे by using the first row, let us take the symbol first, plus minus plus. तो +1 into delta is this is equal to 0 given है, it is equals to 0. तो 1 इंटू 1 रहे सो रो और कॉलम छोड़ेंगे, 2x इंटू -2 दैट इज -4x, और ये माइनस x इंटू 3 इज -3x, -3x ऑलरेडी यहाँ पे माइनस होता है तो ये +3x होगा. तो 1 रहे सो रो और कॉलम छोड़ेंगे, रिमेनिंग 4 एलिमेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2x इंटू -2, 2x इंटू -2 इज -4x, और -x इंटू 3 इज -3x. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सेकंड सिंबल चेंज, that become +3x. The second element is -x. तो ये -x रहे सो रो और कॉलम छोड़ देंगे, x का कॉलम और रो छोड़ेंगे, 0 इंटू -2 इज 0, और -x इंटू 1 वो हो जाएगा -x, ऑलरेडी यहाँ माइनस होता है तो वो हो जाएगा +x. एंड लास्ट एलिमेंट इज 0 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इट इज 0 ओनली, तो इसके साथ हम मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे. एंड गिवन दैट दिस इज इक्वल्स टू 0, -4x प्लस 3x इज -x, और ये होगा x इंटू -x इज -x², दिस इज इक्वल्स टू 0. equals to 0. The next, on taking a -x common here, -x common, this become 1 plus x, this is equal to 0. Either -x equal to 0 or 1 plus x equal to 0. Either x is equal to 0 or x equal to -1. अब यहाँ पे ये ऑप्शंस चेक कर रहे हैं हम लोग. ऑप्शन में देखिए यहाँ x के 2 वैल्यू आए, 0, x इक्वल टू 0 आया पहला वैल्यू. क्या इसमें चारों ऑप्शन में x की वैल्यू 0 है? नहीं है. ठीक है, तो इसे हम छोड़ देंगे. x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1. अब देखिए यहाँ पे x इक्वल टू -1 है, यहाँ देखिए फर्स्ट ऑप्शन में x इक्वल टू -1 है. ठीक है, तो जब x के 2 वैल्यू आते हैं, दोनों वैल्यू वहां होना चाहिए एक ही ऑप्शन में, या दोनों में से एक ऑप्शन में होना चाहिए. दोनों अलग अलग ऑप्शन में आ गए तो फिर दैट इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो x इक्वल टू -1 इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. तो इस तरह से हम लोग इसका आंसर फाइंड करेंगे. नेक्स्ट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट. इस डिटर्मिनेंट का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे. ओके, मैक्सिमम वैल्यू. तो डिटर्मिनेंट इज डेल्टा इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 प्लस साइन थीटा, और ये 1 है, 1 1 1 प्लस कॉस थीटा है. बिफोर एक्सपैंडिंग दिस, let us make here 2 of the ones as a 0. Okay, I'm changing here r2 changes to r2 minus r1 करेंगे, 1 minus 1 0 होगा. And also I'm applying r3 changes to r3 minus r1. r2 में से भी r1 माइनस करेंगे और r3 में से भी r1 माइनस करेंगे. So this become first row as it is 1 1 1, second row 1 minus 1 0, 1 plus sin theta minus 1 is sin theta, and 1 minus 1 is 0.
and 1 minus 1 is 0, 1 minus 1 is 0, and 1 plus cos theta minus 1 is cos theta. Cos theta. Now I'll expand this by using the first column. फर्स्ट कॉलम में देखिए दो एलिमेंट जीरो है, तो इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नेसेसरी नहीं है. तो टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स वी कैन यूज एनी रो और एनी कॉलम. कौन सा भी रो और कॉलम हम यूज कर सकते हैं. मैं यहाँ फर्स्ट कॉलम यूज कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट कॉलम में दो एलिमेंट जीरो हैं, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जरूरी नहीं पड़ेगा. ठीक है ना. तो फिर दिस इज इक्वल्स टू 1 इंटू, अब ये 1 रहे सो रो और कॉलम छोड़ेंगे, बाकी का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट इज साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस 0 into 0 is 0, remaining minus 0 plus 0. Then this value become only sin theta into cos theta. इसका क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, इसका मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है ना. तो इसका मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्टली हम नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा दोनों भी हैं. साइन थीटा कॉस थीटा दोनों हैं, तो दोनों को हम सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो फिर कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, वो हमको मालूम है. इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वी हैव डिस्कस्ड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो उससे ये पता चलता है कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या मैक्सिमम वैल्यू है और क्या मिनिमम वैल्यू है. ओके. तो फिर साइन थीटा कॉस थीटा है, सो साइन थीटा कॉस थीटा आई एम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2. सो दिस बिकम 1/2 into 2 sin theta into cos theta, and this is nothing but 2 1/2 into sin 2 theta होगा. And we know that sin n theta is greater than or equal to -1, less than or equal to +1. sin n theta का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो फिर we required maximum value of the determinant, तो 1/2 into 1 हो जाएगा. दिस बिकम 1/2 into 1 equals to 1/2. the maximum value of this determinant is 1/2. okay, तो 1/2 is a थर्ड ऑप्शन. 1/2 है, देखिए. ठीक है ना. तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट. इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमको फाइंड करना है. यू कैन सी दैट ईच एलिमेंट इन दिस डिटर्मिनेंट इज व्हाट, कॉम्प्लेक्स फॉर्म. ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स एलिमेंट है इसमें. ठीक है. तो लेट अस फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, दैट इज a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी माइनस. ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, दैट इज c प्लस आई डी माइनस c प्लस आई डी. दिस इज इक्वल टू, देखिए ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म में है, अलजेब्रिक फॉर्म है. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. बी की जगह आई बी है, माइनस. यहां देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर होगा आई डी स्क्वायर और बी स्क्वायर होगा माइनस सी स्क्वायर. मैंने इसे a माइनस बी ए प्लस बी मान रहे हैं हम इसे. ओके, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हम. लेट अस सिंप्लीफाई दिस. a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू है -1 इंटू बी स्क्वायर, माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू है -1 इंटू डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1. ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है, इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. So this become a square, this become minus into minus plus b square, a square plus b square. और यहाँ पे -1 into this minus, it become plus
डी स्क्वायर और ये माइनस इंटू माइनस ये होगा प्लस सी स्क्वायर. दिस इज द आंसर. हम इस ऑप्शन को चेक करेंगे, चारों टर्म प्लस में है. ओनली इन द थर्ड ऑप्शन वी हैव ऑल द फोर टर्म्स positive, that is a square plus b square plus c square plus d square. That is the answer. Next, using the property of determinant, find the value of, इसको प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट यूज करके इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे हम. ओके. So in this determinant you can see that in the first column, sorry, in the first row a is common, we can take it outside. In the second row b is common, we can take outside. In the third row we have a c common, then we can take it outside. Not only the row, in a column also a b c are common. तो आप रो में से निकालिए या कॉलम से निकालिए. वी कैन टेक ए बी सी कॉमन आउटसाइड. The determinant is before determinant, let us take or let us apply the property. In the first row I'm taking a common, in the second row I'm taking b common, in the third row I'm taking c common. In the first common taken a common outside, what is remaining? One more minus a, here b and c remains. And in the second row I have taken b common, that remaining a, and here one b is remaining and c remaining here. And last row, that c I have taken common outside, remaining a, b, and here it is minus c. Okay, a, b, and minus c. The first row, second row, third row, all the three are identical, but one of the element is different, that is minus. First row a is minus, second row b is minus, third row c is minus. अगर यहाँ पे देखिए, अगर ए बी सी सेम नंबर रहते तो इसका डिटर्मिनेंट 0 बनता. लेकिन यहाँ प्लस ए है तो एक तरफ माइनस ए है, प्लस बी है तो माइनस बी एक तरफ, सी है तो एक तरफ माइनस सी है. तो फिर हम लोग ये क्या करेंगे, ये माइनस ए प्लस ये है तो ये दोनों रो को ऐड कर लेंगे, तो फिर ये माइनस ए प्लस ये 0 हो जाएगा. Then easily we can find the determinant of this determinant. We can find its value. I'm applying the row operation here. R2 changes to R2 plus R1. प्लस करने से माइनस से प्लस से 0 होता है. ठीक है ना. Not only R2, I'm changing R3 also. R3 भी चेंज करेंगे, that is R3 changes to R3 plus R1. Okay, then one applying this elementary operation, R2 changes to R2 plus R1, R3 changes to R3 plus R1. What happens? The R1 becomes same, minus A, B and C. Only R2 and R3 will change. Let us add R2 and R1. Second row first row add करेंगे. Minus A plus A होगा 0, plus B minus B होगा 0, C plus C होता है 2C. And then the third row and first row is adding. A minus A होगा 0, B plus B होगा 2B, and minus C plus C हो जाएगा 0. तो देखिए इसमें फर्स्ट कॉलम जो है, फर्स्ट कॉलम में दो एलिमेंट 0 हो गए. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कॉलम, if we expand this, easily we can find its determinant value. तो I'm using the first column to expand this. First column देखिए, plus minus plus. I've taken symbol and expanding this. This is equal to outside this determinant we have a b c. देखिए a b c determinant के बाहर है as it is. Now expanding this determinant, तो plus into minus a is minus a, minus a into माइनस ए रहे सो रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो रिमेनिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0 इंटू 0 ये हो जाएगा 0. 2c इंटू 2b, 2c इंटू 2b होगा 2 2 4bc, दैट इज माइनस 4bc. रिमेनिंग एलिमेंट तो 0 है, सेकेंड एलिमेंट 0, थर्ड एलिमेंट 0,
जीरो इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नॉट नेसेसरी, उसका वैल्यू जीरो ही आता है. This is equals to ABC into minus plus 4ABC. That is into plus 4ABC होगा. Minus into minus plus 4 A into BC ABC. तो देखिए ये होगा 1 into 4 is 4 ABC into ABC A square B square C square. 4A square B square C square is the correct option. That first option is correct. Understood? Okay. तो देखिए स्टूडेंट्स, तो ये जो वीडियो है थोड़ा सा स्लोली स्क्रॉल करते हुए अगर सुनेंगे तो इजीली ये कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया एलिमेंट्री ऑपरेशन वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. ठीक है ना. तो यहाँ पे हम आज स्टॉप करेंगे. ठीक है ना. तो नेक्स्ट क्लास में और प्रॉब्लम के साथ हम लोग यहाँ पे डिटर्मिनेंट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. ओके स्टूडेंट, थैंक यू. विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास.